کہا جب بھی تو چاہت ہو، بس چاہت، وہ چاہت رزق کی، صحت کی، عزت کی، برکت کی، عطا کی، شفقت کی، وہ چاہت مہربانی کی، وہ دنیا کی، آخرت کی، غروب کی، روحانیت کی، کمال کی، کسی کی چاہت ہو، اس کو پڑھ لو۔ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے۔ اسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ اب ایک واقعہ سن لیں پوز۔ یہ عمل ایک بندہ کر کے سوئے، سوتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، اور پھر اس کے بعد سوتے وقت درود پاک ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جائے اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے 3 ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی آئے اور اس کا فائدہ بتائے، یا حضرت علی آئے، یا حضرت عمر آئے، یا پھر حضرت زین العابدین آئے، کہ 3 میں سے ایک بندہ آئے اور مجھے اس عمل کا کیا بتا، فائدہ بتا۔ کہتے ہیں میں اس کو کچھ عرصہ کرتا رہا، کچھ دن، بعض کو جلدی، بعض کو دیر سے چیز کھلتی ہے، کرتا رہا۔ خواب دیکھا 3 کرسیاں بچھی ہیں اور تینوں کرسیوں پہ کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں۔ میں نے سلام کیا تو باقیوں نے دل میں جواب دیا اور ایک نے بہت واضح جواب دیا اور کہنے لگے میں علی بن ابی طالب ہوں اور میں ابو الحسن، کیونکہ آپ کی کنیت بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، میں ابو الحسن ہوں، تو تم نے مجھ سے اس دعا کے فائدے چاہے تھے، تو تم چاہو تو یہ بتا دیں، میں بتا دوں۔ میں نے کہا جی آپ ہی بتا دیں۔ اب سنیں جو انہوں نے خواب میں فرمایا اور جس بندے کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا تم نے اس کے فائدے کیا پڑھے؟ انہوں نے یہ فائدے بتائے جو اس کو پڑھے گا، کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے 1000 دن تک مشقت میں پڑ جائیں گے، ان کو مشقت میں ڈالے گا۔ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ ہی اس لفظ مشقت کیا ہے؟ نہیں۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ اس لفظ مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ثواب لکھیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا لکھیں گے، سچ ہے۔ کہا مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ تیری مصیبتوں کو ٹلوائیں گے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھلوائیں گے، تیرے لیے بخت نصیب اور عزت، برکت، رحمت، راحت اور تیرے جادو کو ختم کریں گے، تیرے دشمنوں سے لڑیں گے، تیرے جادو کالی چیزوں کو ختم کریں گے اور تیرے جنات کو۔ یہ جو میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں اس میں کچھ الفاظ میرے بھی شامل ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں بات کا۔ تیری ساری چیزوں کو ختم کرنے کی مشقت میں لگ جائیں گے اور کالی چیزوں سے لڑیں گے، انہیں جلائیں گے، انہیں ختم کریں گے۔ وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ میرے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اس درود پاک کے پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کے پاس کوئی بندہ پیسے لے لوگوں کے کھا جاتا تھا۔ اگر ان سے کوئی پیسے لینے آتا تھا تو بڑی محبت سے، تواضع سے کہتا تھا کھیر کھانڈن دے سام، دودھ چینی ہے، دودھ میٹھا ہے، دوں گا انشاءاللہ، آپ کے پیسے کھرے ہیں کھیر کھانڈن، جبکہ دیتا نہیں تھا۔ میں بھی یہی کہہ دوں، اس کا عمل ہوتا۔ فرمایا کسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ 3 عمل بتائے، غور سے سنیے گا۔ انسان کی راتوں کا بعض اوقات نیند کھل جاتی ہے، کروٹ بدلتا ہے، نیند کھل جاتی ہے۔ جزا اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ، یاد کر لیں، جزا اللہ ما ہوا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اتنا ثواب ہوگا، یہ بات حضرت علی نے کھولی۔ فرمایا تو نے پتہ ہے کہ لفظ اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتوں کو مشقت میں ڈال دے، تو مشقت سے مراد کیا ہے؟
मैं आपको कहूं लकड़ियां इकट्ठी करके ले आए, मैं आपको कहूं ईंटें बनाए, मैं आपको कहूं तस्बीखाने की तामीर करें, मैं आपको कहूं रोटियां लगाएं, ये सारी मुशक्कत है। झाड़ू दें, सफाई करें, ये निजाम यूं करें, ये सारी मुशक्कत है या नहीं है? एक 70,000 फरिश्ता और उसको 1,000 दिन तक, सोचें तो सही, एक फरिश्ता ही कायनात के निजाम के लिए काफी है और यहाँ 70,000 फरिश्ता। और पूछा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा उसका एक कंधा मशरिक से मगरिब तक होता है। पूछा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा एक पर खोले तो पूरा मशरिक से मगरिब ढक जाए। पूछा अब्बास रिवायत में नुज़रतुल मजालिस में अल्लामा सफूरी अब्दुर्रहमान सफूरी रहमान ने लिखा और बाज फजाइल की किताबों में लिखा हमारे बड़ों ने, असलाफ बड़ों ने, कहा फरिश्ता कितना बड़ा होता है? कहा उसका सर जितना है कि सारी कायनात का पानी डालें तो इतना सर में कतरा भी कम। और आज मैंने दोपहर बताया कि एक फरिश्ता इतना बड़ा है जो एक दफा दरूद पाक पढ़ता है। कितनी दफा? मुकाशिफतुल कुलूब किसकी किताब है? इमाम गजाली की। मैंने आज अभी रिवायत बताई है, फिर बता देता हूँ। आज नया मजमा भी आया है। अल्लाह के अर्श के नीचे नूर का एक समंदर है और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सारी कायनात के पानी, समंदर, चश्मे, ग्लेशियर सब इकट्ठे करें तो ये कतरा और वो समंदर। एक फरिश्ता समंदर के किनारे बैठा है। जब बंदा अल्लाहुम्मा पढ़ता है, दरूद पाक शुरू करता है, चौकन्ना होता है, जब दरूद पाक खत्म करता है, पानी में डुबकी लगाता है और निकलता है और अपने परों को झाड़ता है और उसके पर कितने हैं? सारी कायनात की मखलूक, चरिंद परिंद, जमीन के मखलूक, आसमान के, समंदर के, पहाड़ों के, ऊपर नीचे, खरबों खरबों खरबों, इससे भी ज्यादा अल्लाह के इल्म में है। जब झाड़ता है तो हर पर से कतरा गिरता है और हर कतरे से फरिश्ता बनता है और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पाक पढ़ने की ड्यूटी में लग जाता है। यह है फरिश्ता जिसके 70,000 फरिश्ते जिसके खिदमत में लग जाएं। मुझे बताओ, और कितने दिन? 1,000 दिन। 70,000 फरिश्ते जिसकी खिदमत में लग जाएं और मुशक्कत में लग जाएं, तो फरिश्ते ताकतवर या जादू ताकतवर? मुझे बताएं पहले। और अली ने ये बात खोली है, अल्लाह भला करे आले रसूल के घराने का। वो सदा जी में मेरा सखी आते तेरा घर सदा जी असा पिनने महस फकीर हिस्से दर जान सुजानते आए हैं। तय मिलिया नहीं मिलिया तय महबूब वांगो, सारी दुनिया छानते आए हैं। सोना ना ठुकरा दर आया को एक तेरे मानते आए हैं। और राज राज शफकत पिन गिन सो कहीं वसदे भानते आए हैं। कई सखियों के दर पे आए हैं। असा पिनने महस फकीर हिस्से, हम भिकारियों के भी भिकारी। दर जान सुजानते, हमें पता है ये दर किसका है। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। दर जान सुजानते आए हैं, नहीं मिली आता है महबूब मांगो, सारी दुनिया छानते आए हैं, दुनिया के धक्के खा खा के आए हैं। अब मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर पे आए, सारी दुनिया छानते आए हैं। अली करमल्लाहु वजहहु ने ये अमल को खोला है, इस अमल को खोला है। मैं तुम्हें पता है कि लफ्ज वहां फायदा नहीं लिखा हुआ, सवाब नहीं लिखा हुआ, मुशक्कत लिखा है। रिवायत मेरे सामने पड़ी है, रिवायत मेरे सामने पड़ी है, सफा नंबर 41 पे पढ़ रहा हूं। ये वो मतबुआ है जो कुतुब खाना फैजी का छपा हुआ है, बास में सफे ऊपर आगे नीचे है। मुशक्कत में डालेगा। एक 3 तरीके बता रहा हूं। एक तरीका कब है? जब करवट बदले रात को, और अगर सारी रात में नींद न भी खोले तो सुबह उठ के इसको चंद बार जरूर पढ़ ले। दूसरा तरीका फरमाया सोते वक्त पढ़ना है। सोते हुए जब आंखें बंद हो जाती हैं, रात को ऊपर से बलाएं, वबाएं, आफतें, परेशानियां, तकलीफें उतरती हैं और हर उस शख्स से बची रहती हैं जिसके 70,000 फरिश्ते जिसके मुहाफिज होंगे, उससे कोई बलाए आफत बची रहेगी या आएगी? बताएं। आज वो अमल करा रहा हूं आपको। ये पहला पैकेज हमारा शुरू है, रूहानी पैकेज। उससे बलाएं, आफतें, मुसीबतें, एक फरिश्ता ही काफी है जो इतना ताकतवर है। इधर 70,000 फरिश्ता खड़ा है। आपकी अगर फरिश्ते 70,000 हिफाजत में लग जाएं, मुझे बताएं। और किस हस्ती ने, अज़ाली ने ये फरमाया है, आप मुझे बताएं कि उस बंदे को कोई तकलीफ हो सकती? हाँ, मेरा रब चाहता है कि तकदीर में मैंने तुझे तकलीफ देनी है और उसका अजर क़यामत के दिन तुझे वो दूंगा कि पहाड़ भी हिल जाएंगे,
وہ रब के फैसले हैं, लेकिन ये चीज कमाल है। और तीसरी और आखिरी चीज इसका फायदा जो लिखा है, फरमाया जब भी तुम्हें कोई चाह तो दिल में पढ़ लो, अल्लाह 70,000 फरिश्तों को कहेगा इसकी चाहत में लग जाओ, जिन्हें आके गरीबां दी बां पढ़ ले। जब भी कोई चाहत हो, तश्तही, जब भी तुम्हारे दिल में किसकी चाहत हो, अल्लाह रिस्क दे दे, अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह बीमारियों से नजात दे दे, अल्लाह मेरी नजरों को तकवा दे दे, अल्लाह मेरे दिल को तन्हाइयों में तकवा दे दे, अल्लाह मुझे अपना बना ले, अल्लाह मुझे नेट की दुनिया, अल्लाह गिलाजत खबासत नजासत, अल्लाह फलां चीज, या अल्लाह तेरे खजाने में है, मेरी बेटों को मेरी बेटियों का बख्त नसीब मुकद्दर अच्छा कर दे, उम्र में बरकत दे दे, सेहत में बरकत दे दे, बरकत में बरकत दे दे, इज्जत में बरकत दे दे। वाह मौला क्या कमाल है। आया है अली तेरे बच्चे जिए, सदा तेरी नस्लें आबाद रहें, शाद रहें। कहा जब भी तो चाहत हो, बस चाहत, वो चाहत रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, बरकत की, अता की, शफकत की, वो चाहत मेहरबानियों की, वो दुनिया की, आखरत की, वो रूह की, रूहानियत की, कमाल की, किसी की चाहत हो, इसको पढ़ लो। तादाद नहीं फरमाई, बस पढ़ लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बस पढ़ लो। इस अमल को भूलेंगे नहीं भूलेंगे। आले रसूल का हमारे ऊपर यह एहसान है बहुत बड़ा, या उनकी मोहब्बतें हैं, या उनका ताल्लुक है। हम जिंदगी किन राहों में गुजार रहे हैं, हमारी राहें यजीदी हैं या हुसैनी हैं। खुद मैं भी सबसे पहले इसका हिसाब करूं, एहतसाब करूं, आप भी, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी के सुबह शाम कैसे हैं, रिस्क में हलाल हराम जायज नाजायज क्या है, सच्ची राहें क्या हैं, हमारी तन्हाइयां क्या हैं। और फिर क़यामत के दिन इन हस्तियों का सामना होगा। मुझे एक चीज बताएं, हाफिज सिफारिश करेगा हदीस में आता है, हाजी सिफारिश करेगा हदीस में आता है, सखी सिफारिश करेगा हदीस में आता है, जिनके घर से कुरान मिला है, जिनके घर से सखावत मिली है और जिनके घर से नेकी मिली है, क्या वो क़यामत के दिन सामने आके सिफारिश नहीं करेंगे? इन हस्तियों के घर से कुरान मिला है, कुरान इन हस्तियों से मिला है, आले रसूल से, असहाब रसूल से, हजूर के घराने, हजूर की फैमिली से, और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, बेटे, दामाद, नवासे, नवासियां, ये सारा हजूर का घराना, अली हजूर का घराना, हसन हजूर का घराना, हुसैन हजूर का घराना, सैयदा फातिमा आंखें झुक जाएं हजूर का घराना, और उनकी आल हजूर का घराना, ये सारे हजूर की फैमिली हैं। तो हमारी जिंदगी का रुख कैसा होना चाहिए? अपनी जिंदगी को क़यामत के दिन इन हस्तियों के सामना आमना होगा, आमने सामने में हमें कुछ देखना दिखाना होगा, कोई पता चलेगा। तो अपनी चाहत जब भी होगी, कोई चाहत हो, तो ये दुआ पढ़ लें। कौन सी? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। और कहा कि मुझे अज़ाली ने फरमाया, कहा जाओ दुरूद पाक की किताब इसी का फरमाया जिसने मुझे सुनाया, कहा कि उस किताब को खोल और उसके सफ़े के नीचे एक चीज लिखी है, मजमे को कहें वो पढ़ें, एक दफा पढ़ लें या बार बार पढ़ें। फरमाए जिंदगी में जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु कबूल है, इसके पढ़ने से कबूल दर कबूल मकबूल दर मकबूल होगी। अगला लफ्ज में हम पढ़ लें बैठ के, यानी दूसरे लफ्जों में ये जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु याद हो गया? सबको याद हो गया? और अगर नहीं हुआ तो खूब पीछे पढ़ के इसको याद करना है। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा याद कर सकता है। ये दर मुस्तफा का मिला तोहफा है, वहां का मिला मोती है। और फरमाया अगर इसको चाहते हैं कि सारी जिंदगी, ये अल्फाज का कुछ मजमुआ मेरा भी है इसमें समझाने के लिए, कि चाहते हैं अगर सारी जिंदगी ये तोहफा तुमसे ना छीने, इसकी बरकतें हमेशा रहें, इसकी सादतें हमेशा रहें, और कायनात का ये राज तुम्हारे हाथों में हमेशा रहे। कहा उसी सफ़े पे आगे एक दुआ है, उसको पढ़ लेना। और वो दुआ ये है
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु व इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ये सफ़ा नंबर 42 पे लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 42 पे। अबुल फजल किरमानी फरमाते हैं, एक शख्स खुरासान से मेरे पास आया, उसने ये बयान किया कि मैं मदीने पाक में था, मैंने हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत की तो हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया, जब तू हमादान जाए तो अबुल फजल बिन ज़ीरक को मेरी तरफ से सलाम कह देना। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है? आपने फरमाया, रोजाना मुझ पर 100 मरतबा ये दरूद पढ़ता है, रोजाना। अबुल फजल कहते हैं, उस शख्स ने कसम खाई, वो मुझे या मेरे नाम को हुजूर के ख्वाब में बताने से पहले नहीं जानता था। वो मैं वहां रहता हूं हमादान में, वो मदीना से आया, हमादान में कमली वाले का पैगाम लेके आया। ये शेखुल हदीस ने लिखा है सफा नंबर 43 पे। आया और मुझे आके कहा कि हुजूर के ख्वाब बताने से पहले नहीं जानता। कहा, मैंने उसको कुछ गल्ला देना चाहा इस ख्वाब की खुशखबरी में, उसने कहकर इनकार कर दिया। मैं आका के पैगाम को बेचना नहीं चाहता, मैं इसका कोई मुआवजा नहीं लेना चाहता कि तेरे इस दरूद से, तेरे इस लफ्ज से मेरे आका अपने रोजे में इतने खुश हैं कि हुजूर ने मदीना में मुझे कासिद बना के भेजा, जा हमादान में और जा उसको खुशखबरी दे आ। अबुल फजल कहते हैं, इसके बाद फिर मैंने उस शख्स को नहीं देखा, बस वो पैगाम दे के चला गया। कहा कि वो रिजालुल गैब था, ये क्या था? इन हस्तियों का भला हो जिन्होंने हमें जिंदगी के ये सबक दिए हैं। आए फिर हम ये भी पढ़ लेते हैं ताकि सारी जिंदगी जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु हमसे न छीने। इसकी सादतें, इसकी खैरें और इसकी इनायतें इंशाअल्लाह हम पे और हमारी नस्लों पे सदा बहार रहें, सदा बहार रहें। हाँ, सदा बहार रहें। ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा, लम्हा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिलसिम के मरवे सा, सदा बहार रहें। पढ़ें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु व इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। फिर पढ़ें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलहु वफ़अल बिना मा अंत अहलहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। समझ लें कि इंशाअल्लाह हमारा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु, उसमें भी अहलहु अहलहु ये मुस्तनद भी है। अब इंशाअल्लाह हमारे और हमारी नस्लों से क़यामत तक नहीं छिनेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह नेमत दे के फिर छीन न ले। कोई भी चीज दिल में तश्तही, दिल में कोई चीज की चाहत है और वो चाहत मनवाना और मांगना चाहते हैं, तो बस ये पढ़ लें, एक बार, 2 बार, 3 बार, बस पढ़ लें। तादाद नहीं बताई, हज़रत अली ने तादाद नहीं बताई ख्वाब में, और मैं बस पढ़ लें। अब वो 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें। फायदा क्या बताया? 70,000 फरिश्ता, गौर से सुनिएगा, 70,000 फरिश्ता 1000 दिन तक अल्लाह से इसकी हाजतें मनवाने की मुशक्कत में लग गया। 70 फरिश्ता और कितने दिन? 1000 दिन की मुशक्कत में लग गया अल्लाह से इसकी हाजत मनवाने में कि मौला तेरे गैब के खजाने में कमी नहीं। तेरे बंदे ने जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु पढ़ा, अल्लाह इसको दे। सोचो, जिसके हम नवा, जिसके तरफदार और जिसके साथी खुद फरिश्ते बन जाएं, जिनको हर वक्त अल्लाह के साथ राबते हैं और अल्लाह के साथ उठते बैठते हैं और अल्लाह के खजानों से अहकामात मिलते हैं, देते हैं, आते हैं। यानी बंदियां और बंदे बैठे हैं और उन्होंने पढ़ा है क्या? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु। फरिश्तों, 70,000 फरिश्ते, आ जाओ, जल्दी करो। अल्लाह क्या करे? फरमाए सारे काम छोड़ो,
मौला क्या करें, 1000 दिन तक मुशक्कत में लगा दिया, इस बंदे की ये जरूरत पूरी कराओ। और मेरे जी में एक बात आ रही है, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को देना चाहते हैं फिर लफ्ज भी खुद अता करते हैं। जब अल्लाह देना चाहते हैं फिर लोग जुबान पे खुद अल्लाह वो लफ्ज। मेरा ख्याल यह है कि मेरा रब तस्बीह खाने और उसके साथ निस्बतें रखने वालों को उनके अदब, उनकी सच्ची तलब की वजह से देना चाहता है। आज अल्लाह ने जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन महल मा हुवा अहलहु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह पाक उनको आबाद और शाद रखे, उनकी कब्रों को, मजारों को नूर से भर दे, उनके दर्जों को और बुलंद कर दे, और कयामत के दिन आमना सामना हो तो वो मुझे आपको देख के खुश हो, हम उनको देख के खुश हो। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।